Very good morning, friends. Hope you all are doing the best. So, friends, we have completed Christopher Marlowe and his all important plays and poems. So, friends, today we are starting one of the English literature gems of English drama, tragedies, and many more. So, friends, the author we are talking about is William Shakespeare, all time the best and world classic writer, dramatist, sonneteer. So, friends, his most important work we are starting with that is Hamlet. Hamlet is one of the globally renowned work and its most important work for your UGC NET, GRF, and all state set exams, all teaching jobs, examinations like assistant professors, college professors, university professors, or other lectures posters of different states. So, friends, this is one of the unique works by William Shakespeare. So let us start with this work today. Friends, as you see in my content which I create, I have already always a system of creating the content, presenting the content in a systematic way, and which is directly connected with the many uh, prestigious exams like UGC NET, GRF, state sets, teaching jobs, and very important thing to note that I used to give you people a lot of knowledge in a short time, but all you have to do is that you don't skip this content. You have to go through line by line, as each and every line is important. Everything I tell you is important because I have extracted this content from the whole book, whole work of the Hamlet, और जो भी मैं कंटेंट तैयार करता हूँ आई यूज टू read, go thoroughly through the uh, topics, and then make notes, a summarize notes for you people. So, friends, don't skip a single line. Let us start our today's topic, that is Hamlet, written by William Shakespeare. So, friends, as you see on the screen, yeah, I had divided this content into these some parts. As usual, I do that for you people in my all the video lectures. So, friends, first of all, I have divided it into these subheadings. First of all, we have introduction. After that, detailed story of the summary. After that, we have critical analysis of this Hamlet. After that, very short answer
questions for quick revision so that we can revise it quickly for your own knowledge, to multiple your knowledge. अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. आफ्टर दैट पीपल, we have the UGC net JRF asked questions, asked MCQs with explained answers, and I am your friend, Dr. Vipan Raj. Let us, friends, start our journey through this topic, Hamlet by William Shakespeare. So, friends, we have this introduction part. Let us start with this introduction. The introduction to Hamlet is, friends, its full title is Hamlet. पूरा title नहीं है. Full title इसका है The Tragedy of Hamlet. And what is Hamlet? Hamlet is the Prince of Denmark. तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं जिनका नाम हेमलेट है, और उनके साथ क्या ट्रेजेडी होती है इन दिस प्ले. दैट इज योर फुल टाइटल. तो इंपॉर्टेंट चीज सब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ दिस हेमलेट. द फुल टाइटल इज द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. आफ्टर दैट, आथर की बात करें, फिर टॉक अबाउट आथर. आथर इज विलियम शेक्सपियर, ऑल टाइम द बेस्ट. डेट रिटन आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस इज 1600 में इस प्ले को लिखा गया था, एंड 1601 में इसको परफॉर्म किया गया ऑन द स्टेज. What was sources or inspiration to write this work, The Hamlet or The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark? तो क्या sources थे इसके? तो फ्रेंड्स, इट वाज बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ हेमलेट. को मिलता जुलता नाम है. तो बेस्ड ऑन द लीजेंड ऑफ हेमलेट फ्रॉम सेक्सोग्रामेटिक्स, गेस्टा ड्रेनोरम एंड हिस्ट्रीज ट्रेजेडीज बाय बेलो फॉरेस्ट, जो कि किसने लिखा था? हेमलेट, बेलो फॉरेस्ट ने लिखा था. तो दिस वाज द सोर्स ऑफ राइटिंग और this play Hamlet. So friends, if you talk about the genre क्या ट्रेजेडी है. A setting of the play की बात करें तो it is एल्सिनोर कासल, डेनमार्क में. If you talk about its structure इसका हेमलेट का स्ट्रक्चर है 5 एक्ट से, 5 एक्ट प्ले है. एंड फेमस कोट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोट्स, ये इंपॉर्टेंट कोट चीजें रहती है, ये चीजें आती हैं. सो यू मस्ट नोट दिस कोट and memorize this quote clearly. The famous quote is, to be or not to be. That is the question. And this quote appears in Act Third, Scene 1. So friends, this is very important to note. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको. तो फेमस कोट है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. और ये किस में आता है? एक्ट थर्ड है, सीन फर्स्ट है. सो फ्रेंड्स, हेमलेट डिटेल स्टोरी की बात करें, हम डिटेल स्टोरी समरी जो है हेमलेट की. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिटेल स्टोरी ऑफ हेमलेट. फ्रेंड्स, इस डिटेल स्टोरी को, जैसे कि 5 एक्ट प्ले है, तो हमने इसको एक्ट्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट एक्ट इज घोस्टस एंड अनरेस्ट. First of all, we have ghostess and unrest. How it starts? It starts with a ghostess, and which creates unrest in Elsinore Castle. The play opens on a cold night at Elsinore Castle. Elsinore लेट नाइट में प्ले ओपन होता है. जो ओपनिंग ऑफ द सीन है, प्ले है, फर्स्ट एक्ट जो शुरू होता है वो लेट नाइट को शुरू होता है. कहाँ पे? एल्सनोर कासल में, डेनमार्क में. A ghost resembling the recently deceased knight Hamlet appears to Watchman and Horatio. तो what happens? एक घोस्ट, एक भूत है. जो भूत है किसका? कम किंग हेमलेट का है.
किंग हेमलेट, एक्चुअली किंग हेमलेट की डेथ हुई है। तो उनका घोस्ट अपीयर होता है, और किसको दिखाई देता है? वॉचमैन को। और हॉरिशो एक पर्सन वहां पे दूसरा है, जिसका नाम का हॉरिशो है। तो हॉरिशो क्या है? द प्रिंस हेमलेट्स फ्रेंड। हॉरिशो कौन है? प्रिंस हेमलेट जो है उसका फ्रेंड होता है, यानी कि देर आर टू पीपल आर हेमलेट। वन इज द किंग, जिसकी डेथ हुई है। और सेकंड हेमलेट इस किंग का बेटा जो है, दैट उसका नाम भी हेमलेट है। और किस किस को नजर आते हैं ये? एक तो वॉचमैन को, दूसरा हरीश्यो को। हरीश्यो कौन है? ये प्रिंस जो हेमलेट है, यानी कि किंग जो हेमलेट जो था, उसका बेटा जो हेमलेट है, उसका फ्रेंड है, इसका नाम क्या है? हॉरिशियो है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसको दिखाई देता है ये भूत, घोस्ट ऑफ हेमलेट? वॉचमैन को और हॉरिशियो को। हॉरिशियो कौन है? प्रिंस हेमलेट्स फ्रेंड है। दे डिसाइड टू इन्फॉर्म प्रिंस हेमलेट। अब इन्होंने डिसाइड किया, वॉचमैन और हॉरिशियो ने, कि दे शुड इन्फॉर्म प्रिंस हेमलेट। मीन वाइल इन साइड द कोर्ट, कैलिडियस द न्यू किंग एंड हेमलेट्स अंकल। अब होता क्या है, आ, इतने में कोर्ट में इनके दरबार जो लगा होता है, उसमें कैलियस डिस जो है इनसाइड द कोर्ट, कैलिडियस। कैलिडियस कौन? जो नया राजा है। और नया राजा कब बनता है? कैलिडियस कब राजा बनता है, कब किंग बनता है? जब किंग हेमलेट की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। और न्यू किंग जो हेमलेट, जो कि हेमलेट का अंकल भी है, जो प्रिंस हेमलेट है हमारा। बहुत ही एक पेचीदा यहाँ पे रोल्स हैं। सो आपको मैं सिंपल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको सिंपली सीखना समझना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी है वो मेन कैरेक्टर्स की बात करें यहाँ पे। हाँ, एक किंग है जिसका नाम क्या है? किंग हेमलेट है। हेमलेट है। आफ्टर दैट उस किंग का बेटा है, जिसका नाम क्या है? हेमलेट है, जिसको हम प्रिंस हेमलेट कहते हैं। इस किंग हेमलेट का जो किंग है, उसका ब्रदर है कैलिडियस। और कैलिडियस जो है अंकल है किसका? प्रिंस हेमलेट का। और हॉरेशियो जो है इस किंग हेमलेट का फ्रेंड है, दोस्त है, और वॉचमैन है। तो लेट अस स्टार्ट दोबारा से, कि आपको समझ आई होगी कि कैरेक्टर्स कौन कौन से। तो ये दीज पीपल, हॉरिशो एंड वॉचमैन, दे डिसाइडेड टू इन्फॉर्म प्रिंस हेमलेट। मीनवाइल इनसाइड द कोर्ट, कैलिडिस द न्यू किंग ऑफ हेमलेट एंड हेमलेट्स अंकल, नया जो बादशाह है, कैलिडिस इसका नाम है, और ये हेमलेट का अंकल भी है, हैज मैरिड गेर्ट्रूड। जेट्रीडोज को उसने मैनेज किया है। हेमलेट्स, जेट्रीड कौन है? हेमलेट की माँ है, यानी कि प्रिंस हेमलेट की माँ है गेर्ट्रूड। और कैलिडिस ने इसको इसके साथ शादी की है। और गेर्ट्रूड वाइफ किसकी थी? इस ये किंग जो हेमलेट है, इस किंग हेमलेट की बीवी थी। सो प्रिंस हेमलेट जो उसकी मदर के साथ अब शादी किसने की है? कैलिडिस ने। और कैलिडिस कौन है? प्रिंस हेमलेट का अंकल है। और यही प्रिंस हेमलेट जो है, इसका अंकल जो कैलिडिस है, यही आप प्रेजेंट है किंग। Hamlet is deeply disturbed by his father's death and mother's swift marriage. बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं हेमलेट। एक तो फादर की मैरिज हुई है, दूसरी बात ये कि उसकी मदर ने शादी तो नहीं करनी चाहिए थी उसको। तो उसकी मदर ने शादी की किसके साथ? एक स्विफ्ट मैरिज, एक अनवांटेड मैरिज है, जो कि उसने की है किसके साथ? कैलिस के साथ। व्हेन ही मीट्स द घोस्ट, और हेमलेट जब उस घोस्ट घोस्ट से मिलता है। हेमलेट कौन? प्रिंस हेमलेट जो है, ये जब व्हेन ही मीट्स द घोस्ट, जब भूत से मिलता है, भूत किसका है? इसके फादर का। इस हेमलेट के फादर, जिसका नाम भी हेमलेट था, जो किंग था, उसका ये भूत है। तो व्हेन ही मीट्स द घोस्ट, इट रिवील्स दैट कैलिडिस मर्डर्ड किंग हेमलेट। तो वो भूत बताता है, भूत किसका है? किंग हेमलेट का है। दैट घोस्ट रिवील्स टू द प्रिंस हेमलेट दैट कैलिडिस इज द मर्डर, he has murdered the king Hamlet, he has murdered your father the king Hamlet। और ये बात रिवील करता है ये घोस्ट प्रिंस हेमलेट के साथ, बाई pouring poison in his ear while he slept। और कैसे उसने उसको मर्डर किया है? कैलिडिस ने कैसे मर्डर किया किंग हेमलेट का? बाई pouring poison, जहर उसके कान में डाला है, जब वो सोया हुआ था, जब किंग किंग हेमलेट सोया था। द घोस्ट डिमांड्स रिवेंज। और ये घोस्ट क्या चाहता है? बदला लेना चाहता है, किसके साथ? कैलिडिस के साथ। और भूत कौन है? किंग हेमलेट है।
किंग हेमलेट का भूत है वो, उसके मरने के बाद। और अपने बेटे से, हेमलेट से कह रहा है कि आई वांट रिवेंज बिकॉज कैलिडिस इज द मर्डर, कैलिडिस हिज ब्रदर हैज मर्डर्ड हिम बाय पॉइजनिंग him, pouring the poison in his ear while he was sleeping. So the ghost demands revenge. Hamlet agrees. Hamlet जो है माँ इस बात को मान लेता है, but is deeply conflicted. बहुत conflict उसके मन में आ जाता है कि what happened, how this has happened, why Calidus murdered his father, King Hamlet. So he decides to teen madness. तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो एक पागलपन जैसा बन जाता है, एज यानी कि डिक्लेयर कर लेता है अपने आप को ऐसा कि ताकि दूसरे लोग माने कि ये क्या है, ये पागल हो चुका है थीन मैडनेस में। तो पुट एन एंटिक डिस्पोजिशन ऑन टू अनकवर द ट्रूथ एंड प्लेन रिवेंज विदाउट एरोजिंग सस्पिशन। तो ये मैडनेस क्यों फील करते हैं, क्यों एक मैडनेस पागल आदमी बन जाता है, ताकि किसी को ये सस्पिशन ना हो, शक ना हो, ताकि ये इसका ट्रुथ भी अनकवर करे, ट्रुथ को भी सच्चाई का भी जान ले कि क्या ये क्लियर सच्चाई है, और साथ साथ में ये भी हो कि कोई कंफ्लिक्ट भी ना पैदा हो, और ये बदला भी ले सके, किसी को इस चीज का शक भी ना हो कि हेमलेट, हाउ डिड हेमलेट डू दैट एंड व्हाई डू हेमलेट डू दैट मर्डर लाइक प्लानिंग। सो फ्रेंड्स, सेकंड एक्ट में ही, फर्स्ट एक्ट में ही होता है कि वो अपने आप को अपने एक फीमेल बना लेता है ताकि किसी को पता ना चले। तो इस तरह से वो एक मैड आदमी बन जाता है, हेमलेट है, प्रिंस हेमलेट जो है। सो उसके साथ एक्ट वन बंद हो जाता है। सो नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट्स विद द सेकंड एक्ट स्टार्ट्स द वेब ऑफ सरिलियंस। अब क्या है, एक सरिलियंस का जाल बिछाया जाता है। तो कैलिडियस बिकम सस्पिशियस, कैलिडियस को शक हो जाता है, कैलिडियस क्योंकि कहते हैं चोर का मन काला होता है। सो कैलिडियस बिकम सस्पिशियस हैमलेट्स एरिटिक बिहेवियर, और ये हैमलेट जो अपना बिहेवियर बनाया है, कैलिडस को शक हो जाता है कि कैसा ना हो कुछ, ये इसको कुछ पता चला। ही समन्स रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो करेक्टर हैं, इनको नोट करने की जरूरत है आपको, कि टू पीपल हु समन्स हैव बीन समन्ड बाय कैलिडियस। कैलिडियस दो लोगों को समन करता बुलाता है, जो कौन कौन से, रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। तो हेमलेट्स ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, ये कौन है, हेमलेट के ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स हैं। टू स्पाई ऑन हिम, ताकि वो उससे जासूसी करें। किसकी जासूसी करें, किंग प्रिंस हेमलेट की जासूसी करें कि इज ही रियली मैड और समथिंग एल्स, क्या वो पागल है या फिर कुछ कुछ उसने उसने कोई प्लानिंग की है। तो मीन वाइल पोलिनस द लॉर्ड चैम्बरलेन, अब पोलिनस कौन है, लॉर्ड चैम्बरलेन है, बिलीव्स हेमलेट इज मैड बिकॉज ओफिला हिज डॉटर हैज रिजेक्टेड हेमलेट ऑन पोलिनस एडवाइस। अब पॉलिनस जो है इस बात को क्लियर करना चाहता है कि हेमलेट इज मैड। पॉलिनस कौन है, एक लॉर्ड है चैम्बरलेन का, और वो कैलिडिस, किंग कैलिडिस से ये बात जाहिर करता है कि हेमलेट इज रियली मैड बिकॉज पॉलिनस की बेटी है जिसका नाम क्या ओफेलिया है, एंड शी हैज रिजेक्टेड हेमलेट ऑन किसकी एडवाइस पे, पॉलिनस की एडवाइस पे, यानी कि पॉलिनस की बेटी का नाम है ओफेला। पोलिनस बेटी अफीला अफीला को चाहता कौन था, हेमलेट, और इस पोलिनस की बेटी अफीला ने रिजेक्ट किया किसको, हेमलेट को। सो दिस इज द कार, दिस वाज द रीजन दैट हेमलेट हैज गॉन मैड, हेमलेट पागल हो चुका है इस वजह से। तो हेमलेट सस्पेक्टिंग फोल प्ले प्लान्स टू यूज ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स टू परफॉर्म ए प्ले। अब हेमलेट जो है वो सस्पेक्ट कर लेता कि फोल्स प्ले में कुछ फोल होने वाला है, कुछ गेम पलटने वाली है। सो ही प्लान टू यूज ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स टू परफॉर्म ए प्ले, इसलिए उसने एक प्ले रचाया जिसका नाम क्या रखा, द मर्डर ऑफ गोंजागा, गोंजागो। प्ले का नाम क्या है, द मर्डर ऑफ गोंजागो। एक्चुअली ये मर्डर ऑफ गोंजागो क्या है, मर्डर किसका हुआ, किंग हेमलेट का हुआ है। इस हेमलेट, प्रिंस हेमलेट जो है इसके फादर का हुआ है, किसने किया, कर्लियस ने किया है। अब इस चीज को ये रिवील आउट करने के लिए, ट्रुथ को रिवील आउट करने के लिए क्या करता है, एक प्ले को ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम क्या है, मर्डर ऑफ गोंजागो। तो गोंजागो किसको रिप्रेजेंट करता है, किंग हेमलेट को, विद एडेड लाइंस टू मिरर हिज फादर्स मर्डर।
और जिसमें लाइंस क्या ऐड की जाती हैं कि उसके फादर के मर्डर मर्डर के ही बारे में, बिल्कुल मिलती जुलती सेम। होपिंग कैलिडिस विल रिवील हिज गिल्ट, ताकि उसको ये उम्मीद थी, उसको होप थी कि कैलिडिस अपनी गलती को रिवील करेगा, गिल्ट को रिवील करेगा, दैट ही हैज परफॉर्म दैट एक्ट, दैट बैड एक्ट, दैट इवल एक्ट। सो इसके साथ सेकंड सीन हमारा खत्म हो जाता है। नो फ्रेंड्स, हाँ, सेकंड सीन में क्या हुआ था, एक प्ले को उसने ऑर्गेनाइज किया। तो एक्ट थर्ड स्टार्ट्स विद, इसका जो टाइटल है, इसका सब टाइटल है माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप। अब एक पिंजरा बनाया जाता है जिसमें जैसे कि किस तरह से ट्रैप किया जाए। तो बिफोर द प्ले हेमलेट डिलीवर्स द फेमस फेमस लाइन, जो हमने पहले बात की थी, फेमस कोट किया इसका है, टू बी आर नॉट टू, टू बी आर नॉट टू बी। एक एक्चुअली क्या है, साली की है, कंटेम्पलेटिंग लाइफ, डेथ एंड सुसाइड। जिसमें क्या आता है, बिफोर द प्ले हैमलेट डिलीवर्स द फेमस लाइन डिलीवर करता है, इसका नाम जो क्या है, टू बी आर नॉट टू बी। एक्चुअली एक साली की है जो क्या कंप्लेंट करती है, लाइफ, डेथ एंड सुसाइड। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस Qualides reacts in guilt and rushes out। और प्ले इतना इम्प्रेसिव था कि कैलिडिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड रशेज आउट, यहाँ से बाहर भाग जाता है। तो हेमलेट नाउ कंफर्म्स हिज अंकल्स गिल्ट। तो इसी के साथ साथ, इस रिएक्शन के साथ, कैलिडिस के इस रिएक्शन के साथ, जब वो बाहर रश आउट करता है, तो हेमलेट, प्रिंस हेमलेट कंफर्म कर लेता कि इसका दैट हिज अंकल इज गिल्टी, ही हैज परफॉर्म दैट मर्डर ऑफ हिज फादर। सो लेटर हेमलेट कन्फर्म्स हिज मदर ग्रेट्यूड। तो अपनी मदर ग्रेट्यूड के साथ भी कन्फ्रंट करता है, झगड़ा करता है इन हर चैम्बर। ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन ही हियर्स ए नॉइज बिहाइंड ए कर्टेन। एक पर्दे के पीछे उसको एक आवाज सुनाई देती है। एंड थिंकिंग इट्स कैलिडियस, उसने सोचता कि ये कैलिडियस है, किल्स पॉलिंस। थोड़ी सी पेचीदा लाइंस हैं, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है। कि ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कैलिडियस, कैलिडियस जो है, जो कि इस हेमलेट जो प्रिंस हेमलेट है उसका अंकल है, और उसने किया, इस कैलिडियस ने किया होता है, इस हेमलेट के फादर किंग हेमलेट को मारा होता है। और इस चीज को जब ये, इस गिल्टी को जब गलती को मान लेता है, समझ लेता है, उसके अंदर एक प्ले इतना इंप्रेसिव होता है कि इसको अपनी गलती का एहसास होता है, कि इसको कैलिडियस का, कि उसने मर्डर किया अपने भाई का। तो ये रशेज आउट, तो हेमलेट इस चीज को कंफर्म कर लेता है। हेमलेट नाउ कंफर्म्स दैट हिज अंकल इज गिल्टी। तो लेटर क्या होता है, हेमलेट कन्फ्रंट्स हिज मदर, अपनी माँ के साथ कन्फ्रंट कर लेता है रैश में। और जिसका नाम क्या है, उसकी मदर का नाम क्या है, गेट्रूड है। तो इन हर चैम्बर, उसकी चैम्बर में, लेकिन उसी कन्फ्रंटेशन के दौरान क्या होता है, इस हेमलेट को, यानी कि जो प्रिंस हेमलेट है, जो कि गेट्रूड का बेटा है और किंग हेमलेट का बेटा है, उसको कुछ आवाजें सुनाई सुनाई देती है बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे। और सोचता कि शायद ये कैलिडास हो सकता है, यहाँ पे मेरी मदर के रूम में कैलिडास ही, जो किंग, जो प्रेजेंट किंग है, जिसने मर्डर किया होता है किंग हेमलेट का, इसने सोचा कि यही हो सकता है। उसको, तो पर्दे के पीछे उसको, बल्कि उस पर अटैक कर लेता है, क्या समझ के, कैलिडास समझ के, लेकिन होता कौन है, वो पाइलनेस होता है, और उसको मार देता है। यानी कि ना चाहते, वो उसको नहीं चाहता था मारना, लेकिन क्या हुआ, उसने मारना किसको चाहता, कैलिडिस को। उसने समझा कि कैलिडिस पर्दे के पीछे है, तो ये इसको मार देता है। लेकिन एक्चुअली कैलिडस नहीं होता, वो कौन होता है, किंग पाइलनेस होता है, और वो एक्चुअली पाइलनेस को मार। सो फ्रेंड्स, एक्ट थर्ड वहां पे स्टार्ट हो जाता है इस मौत के साथ, पाइलनेस की मौत के साथ। तो एक्ट फोर स्टार्ट्स विद मैडनेस एंड मैनिपुलेशन। मैडनेस है, और मैनिपुलेट किया जाता है चीजों को, बदला बदला जाता है। तो कैलिडियस सेंड्स हेमलेट टू इंग्लैंड। कैलिडियस क्या करता है, जो किंग है यहाँ का इस वक्त का, जो प्रिंस हेमलेट का अंकल है, और इसने मारा होता है प्रिंस हेमलेट के फादर को। तो ये शक हो जाता है कैलिडिस को कि इसको शायद पता चल गया है। किसको शक, या पूरी बात है, जब वो उसको पॉलिनस मर जाता है। तो कैलिडिस हेमलेट को भेजता है इंग्लैंड को, अकम्पनीड बाई रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन। अब देखो, ये फिर से दो कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन कौन है, देज आर द फ्रेंड्स ऑफ स्कूल टाइम, फ्रेंड्स ऑफ प्रिंस हेमलेट। तो उसके साथ भेज देता है, काइल्डस भेजता है हेमलेट को
इसके बचपन के दो दोस्तों के साथ, जिसका नाम क्या है, रोजनक्रैंट्स और गिल्डसन है, विथ सीक्रेट ऑर्डर्स फॉर हेमलेट्स एग्जीक्यूशन। और सीक्रेटली उस छुप के उनको ऑर्डर किया जाता है कि इसको, रोजनक्रैंट्स और गिल्डसन को, कि तुम इस हेमलेट का, प्रिंस हेमलेट जो तुम्हारा दोस्त है बचपन का, एक तो इसका तुमने एग्जीक्यूट कर देना, उसको उसका मर्डर कर देना, उसको खत्म कर देना है। तो हेमलेट डिस्कवर्स द प्लाट। हेमलेट को इस प्लाट का पता चल जाता है, कैलिडस का जो प्लाट था, उसके फ्रेंड्स के साथ जो मिलकर प्लाट था, उसको डिस्कवर कर लेता है, री राइट्स द लेटर एंड एस्केप्स बैक टू डेनमार्क। दोबारा से एक खत लिखता है और वापस चला जाता है, कहाँ पे, डेनमार्क। ओफिलिया डिवास्टेटेड बाई हर फादर्स डेथ। अब ओफिलिया जो है, जो कि जिसको परेशान होती है अपने फादर की डेथ से, पॉलिनस, यानी कि ओफिलिया का फादर कौन है, पॉलिनस है, जिसको हेमलेट ने मारा होता है, क्या समझ के, कैलिडस समझ के। तो सो ओफेलिया, डिवास्टेड बाई हर फादर्स डेथ एंड हेमलेट्स बिहेवियर, गोज मैड एंड ड्राउन्स। ओफिलिया बेचारी पागल हो जाती है और ड्राउन हो जाती है, डूब जाती है पानी की। हर ब्रदर्स, हर ब्रदर लारेट्स। अब उसका भाई, ओफिला का भाई, इसका नाम क्या है, लारेट है, LAERTS, लर्ड्स है, रिटर्न्स फ्यूरियस, ब्लेमिंग हेमलेट फॉर बोथ डेथ्स। तो बहुत फ्यूरियस हो जाता है, पेश में आ जाता है, और ब्लेम करता किसको, प्रिंस हेमलेट को, कि उसने दोनों डेथ्स किसने की काज की है, प्रिंस हेमलेट ने। दोनों डेथ्स कौन सी, एक तो इस लैरेट्स की फादर पॉलिनिस की, और लैरेट के की बहन ओफिलिया की, दोनों के लिए उसको इल्जाम लगाता है, हेमलेट को। कैलिडस मैनिपुलेट्स लैरेट्स इनटू ए प्लान टू किल हेमलेट। तो इस चीज का फायदा उठाता है कि कैलिडस मैनिपुलेट कर लेता है इस तरह से एक कहानी स्टोरी को, कि लैरेट्स के मन में ये बात लाने की कोशिश कर लाता है कैलिडस, कि हेमलेट हैज किल्ड दीज पीपल, या इनकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन है, हेमलेट है। तो लैरेट को एक प्लान में मैनिपुलेट कर लेता है, इनटू ए प्लान टू किल हेमलेट यूजिंग ए पॉइजन स्वर्ड एंड पॉइजन वाइन। दो चीजें इस्तेमाल करने के लिए कहा था उसको लैरेट को, कि ठीक है तुम एक पॉइजन स्वर्ड एंड पॉइजन वाइन, ये दो चीजों का इस्तेमाल करो, जिससे हेमलेट की डेथ हो जाए, प्रिंस हेमलेट मर जाए। सो फ्रेंड्स, वी हैव द फिफ्थ एक्ट, फिफ्थ एंड लास्ट एक्ट, 5 एक्ट प्ले। एक्ट 5, द ड्यूल एंड द डेथ। इनके बीच में जो ड्यूल होता है, जंग होती है, और डेथ होती है, किसकी डेथ होती है। इन द ग्रेवयार्ड, हेमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ वाइल होल्डिंग यार्क्स स्कल। तो यार्क का स्कल, खोपड़ी को होल्ड करके वो क्या करता है, वो हेमलेट रिफ्लेक्ट करता है डेथ पे। द कोर्ट जेस्टर एट ओफिलाज फ्यूनरल, हेमलेट एंड लॉरेट्स फाइट इन ग्रीफ। तो फिला का जब फ्यूनरल हो रहा होता है, उसका दफनाया जा रहा होता है, तो उस फ्यूनरल के दौरान हेमलेट और लॉरेट की फाइट होती है इन ग्रीफ एंड एंगर। द फाइनल ड्यूल टेक्स प्लेस एट कोर्ट। और फाइनल उनका जो फाइट होती है वो कहाँ पे होता है, कोर्ट में होती है। ड्यूरिंग द फाइट लॉरेट वॉन्ट्स हेमलेट, लॉरेट जख्मी कर लेता है हेमलेट को विद द पॉइजन स्वर्ड। दे एक्सचेंज वेपन्स एंड हेमलेट वाउंड्स लॉरेट। इस तरह से उनके दोनों के वेपन एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज, एक दूसरे के हथियार को बदल लेते हैं, हड़प लेते हैं। और इस तरह से जब दोबारा से वार होता है तो क्या होता है, कि हेमलेट भी वाउंड कर लेता है लॉरेट्स के, इसके साथ वही तलवार जो कि पाइजन सवार थी, जो कि लैरेट ने यूज की थी काइडेस के कहने पे, हेमलेट पे। अब यही तलवार किसके हाथ में आती है, हेमलेट के हाथ में आती है, और हेमलेट एंड हेमलेट वॉन्ट्स लॉरेट्स। तो गैट्रीड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन। इस तरह से क्या होता है, गैट्रीड जो है, जो मदर होती है हेमलेट की, वो ये सारी चीजें देख के उसको भी असर हो जाता है उसके दिमाग पे, अपनी गिल्ट फील करती है। ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन मेंट फॉर हेमलेट एंड डाइज। तो जो कि हेमलेट के लिए रखी होती है वाइन, ताकि पॉइजन वाइन जो कि अगर हेमलेट पिएगा और वो मर जाएगा। तो इन दैट इन हेमलेट्स प्लेस हिज मदर गैट्रीड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन एंड डाइस, मर जाती है। इस तरह से समझो कि कैलिडस का के जो दुश्मन, जो एनिमी जो थे, उन सबका सफाया हो जाता है। किंग हेमलेट को उसने पहले ही मारा होता है, खुद मारा होता है पॉइजन देके उसके ईयर में। आफ्टर दैट एक मैनिपुलेट करके
हेमलेट और लारेट को आपस में लड़ा के उन दोनों की डेथ हो जाती है। पॉलिनस को मारा मर जाता है। पॉलिनस की बेटी ओफेला जो है वो सुसाइड कर लेती है, ड्राउन हो जाती है। और लारेट और हेमलेट ये भी दोनों मर जाते हैं। सो एंड फाइनली गेटरूड जो है, जो एक इसके पास काइल्डेस का जिसको डर था कि ये बता सकती है, वो इस राज को खोल सकती है, तो इस तरह से सारे बेचारे मर जाते हैं। तो बहुत ही ट्रेजिक ये प्ले था। तो लारेट्स कन्फेसेस द प्लॉट बिफोर डाइंग। अब लारेट जो है वो कन्फेस कर रहा था ठीक है, वो अपने के इससे क्या गलती हुई है। तो मरने से पहले पहले वो अपने पूरे प्लान को एक्सप्लोर बता देता है और कन्फेस कर लेता है कि ये मुझसे गलती हुई है। तो हेमलेट किल्स काइडिस बिफोर सकम्बिंग टू द पॉइजन हिमसेल्फ। और इस तरह से जब हेमलेट को ये पता चल जाता है, लॉरेट बताता है कि ये प्लान था और इस प्लान के तहत हमने तुमसे पे अटैक किया है। तो इसी तरह से हेमलेट कैलिडास को भी मार देता है अपने मरने से पहले, कम करने से पहले कैलिडास को भी मार देता है। तो एज हेमलेट डाइज हिज नेम्स फार्टिनवर्स, ही नेम्स फार्टिनवर्स प्रिंस ऑफ नॉर्वे। इस तरह से कैलिडास की भी मौत हो जाती है, जबकि हेमलेट उसको भी मार देता है, बदला निकाल देता है, रिवेंज पूरा होता है। तो एज हेमलेट डाइज, हेमलेट भी मर जाता तो वो क्या कर लेता है, फार्टिनबर्ग को प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो है उसको उसको राइटफुल सक्सेसर घोषित कर लेता है। तो हरीशियो, हेमलेट्स लॉयल फ्रेंड, इज लेफ्ट टू टेल द ट्रेजिक स्टोरी। और बाद में कौन रहता है जो ये ट्रेजिक कहानी सुनाता है, ये हेमलेट का लॉयल फ्रेंड होता है जिसका नाम क्या है, हरीशियो है। और ये ही हमें ये कहानी सुनाता है। तो ये चीज भी बहुत याद रखने की काबिल है। ये चीजें आ सकती हैं कि हु इज टेलिंग द स्टोरी, हु हैज टोल्ड द स्टोरी, एंड हु इज आर किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। सो हमको याद रखना है कि हेमलेट डाई होने के बाद क्या होता है, फार्टिन को ही प्रिंस घोषित किया जाता है, नेक्स्ट सक्सेसर जो फार्टिन जो प्रिंस है नॉर्वे का, उसको राइटफुल सक्सेसर हेमलेट घोषित करता है। और हर शो जो है वो जो हेमलेट का फ्रेंड होता है, लॉयल फ्रेंड होता है, ही इज लेफ्ट टू टेल द ट्रेजिक स्टोरी। तभी ये कहानी हमारे पास पहुंची है आर्शियों की मदद के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, हमने समरी, डिटेल समरी पढ़ी, उसकी कहानी पढ़ी पूरी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हेमलेट, जो ये ट्रेजिक प्लेस का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में इसका हम थीम ऑफ रिवेंज एंड मॉरलिटी को देखेंगे। तो व्हाट इज द थीम ऑफ रिवेंज एंड मॉरलिटी देयर। तो हेमलेट इज ए रिवेंज ट्रेजिडी। क्रिटिकल एनालिसिस हेमलेट हम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हेमलेट क्या है, एक रिवेंज इज द रिवेंज ट्रेजेडी, बट अनलाइक ट्रेडिशनल एवेंजर्स लाइक लैरेट्स और फॉन्टेबर्स, हेमलेट इज फिलोसफिकल, इंट्रोस्पेक्टिव एंड मॉरली कन्फ्लिक्टेड। ही डिलेज एक्शन बिकॉज ही सीक्स मॉरल सर्टेनिटी। एक्शन जल्दी नहीं करता, डिले कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सर्टेनिटी चाहता है, वो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन चाहता है कि एक्चुअली हु इज गिल्टी। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इसलिए वो डिले करता अपने प्लान में, अपने कैरेक्टर्स में, बट वो मॉरलिटी पे पहुंच जाता है, एंड मॉरल सर्टेनिटी पे, एंड फियर्स सिन एंड डैमिनेशन। पाप से डरता है, डैमिनेशन से, जहन्नम से डरता है। सो वो हर चीज देख के करता है। दस कंसाइंस डज मेक अवार्ड्स कवर्स ऑफ अस ऑल। तो ये एक फेमस कोट है इसका, दस कंसाइंस डज मेक कवर्स ऑफ अदर्स। तो ये एक्ट हेमलेट के एक्ट थर्ड में ये कोट है, आया है। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस है उसमें वो क्या है कि ट्रेजिक फ्ला है इसमें, प्ले में, हेमलेट में। तो हेमलेट्स इंडिसीजन, वो क्या है, ट्रेजिक फ्ला है। तो हेमलेट्स हमेशा ट्रेजिक फ्ला है इज हिज और थिंकिंग एंड इनएबिलिटी टू एक्ट डिसिवली, वाइल लॉरेट्स एंड फॉर्टनब्रस आर मैन ऑफ एक्शन। क्योंकि लॉरेट्स और फॉर्टनब्रस के मैन ऑफ एक्शन है, लेकिन हमेशा जो है वो बेचारे ट्रेजिक फ्ला है, उसमें कमी है, वो ट्रेजिडी नहीं कर सकता है। तो वाइल लॉरेट्स एंड फॉर्टनब्रस आर मैन ऑफ एक्शन, तो हेमलेट इज पैरालाइज्ड बाय डाउट। और हेमलेट जो है, इसको शक में ही पैरालाइज हो जाता है बेचारा, शक करता है लेकिन उस एकदम से एक्शन नहीं करता है। वो क्या करता है, एक सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। तो दिस इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस हेमलेट। दिस वाज सेकंड क्रिटिकल थिंग। तो थर्ड थिंग वी lies in the plays,
अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस कुछ होती और होती है और रियलिटी कुछ अलग होती है, जो कि हेमलेट एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो मेनी कैरेक्टर्स हाइड देयर ट्रू इंटेंशंस, जैसे कैलिडस था, ट्रू इंटेंशन अपनी छुपाई थी उसने। आफ्टर दैट, जैसे हम उसके रोजन क्रैंस और गिल्डन सर उसके उसके फ्रेंड्स की बात करें हेमलेट की, उन्हें अपनी जो रियलिटी छुपाई थी। तो हेमलेट प्रिटेंड्स मैडनेस, और हेमलेट भी इसमें मैडनेस प्रिटेंड करता है। ये भी एक रियलिटी नहीं थी, अपीयरेंस थी, रियलिटी अलग थी। तो कैलिडियस अपीयर्स पॉइस, और कैलिडियस जो अपने आप को पवित्र साबित अपीयर करता है, क्योंकि जो कि उसकी रियलिटी क्या थी, वो मर्डर था। पॉलिनस प्लेज द वाइज मैन वाइल मैनिपुलेटिंग अदर्स। पाइलनेस जो है एक वाइज मैन बनता है दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, जब वो इस बात को साबित करना चाहता है कि हैमलेट इज मैड। द थीम क्वेश्चंस व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज, तो ये थीम क्वेश्चन करता है कि इसमें रियलिटी है क्या और क्या नहीं, यानी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड एपियरेंस। सो दिस वाज आल्सो द थीम which we take it from critical analysis of this play. Next, friends, और next theme और critical analysis जो हमें क्या जानकारी मिली है, that externalization and human condition, existentialism and human condition। एग्जिस्टेंस क्या करता है और ह्यूमन कंडीशन क्या है। तो हेमलेट्स सालिकीज एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। हेमलेट में जो सालिकीज हैं वो एक्सप्लोर करती हैं मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, द फियर ऑफ अननोन, अननोन का डर या आफ्टर लाइफ का डर। तो मॉरल डीके इन सोसाइटी, और इसमें ही आस्क्स व्हाट इज ए मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है इससे, इस हेमलेट का, कि जब वो एक्सटेंशलिज्म और ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, when he asks what is man if his chief good and market of his time be put to sleep and feed। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट कोटेशन है एक्सटेंशलिज्म और ह्यूमन कंडीशन का। So, friends, next, what we expect from this critical analysis is a political allegory. This is a political allegory. The corruption in Denmark reflects political instability. Kaldai's rule is built on murder and lies. Hamlet's tragic death brings hope for renewal through party rest and symbol of order। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल एलिगारी है। नेक्स्ट फ्रेंड, वी हैव द यूज ऑफ सलीकेज। तो इस जो ये प्ले है ट्रेजिक प्ले हेमलेट, जो इसमें यूज ऑफ सैलिकेज हुआ है। तो हेमलेट सैलिकेज आर केप्ट टू अंडरस्टैंडिंग हिज इंटरनल वर्ल्ड नोटेबल वंस। ये नोटेबल है जो इंटरनल उसके थिंकिंग्स है उसको समझने के लिए। तो सो फर्स्ट अब ये हम ये कोटेशन है जैसे, ओ दैट इज टू टू सॉलिड, फ्लैश शुड मेल्ट, टू बी आर नॉट टू बी, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। तो ये दीज ऑल ये सैलिकेज जो है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कीज हैं टू अंडरस्टैंड हिज इंटरनल वर्ड, और नोटेबल वंस हैं। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्रिटिकल एनालिसिस इज दैट वी हैव सिंबलिज्म हियर। बहुत सारी चीजों को सिंबल किया गया है। तो जैसे कि द घोस्ट, घोस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, द घोस्ट रिप्रेजेंट्स द पास्ट अनसॉल्व्ड जस्टिस, जो कि पीछे वाला जो सॉल्व जस्टिस जो है, जो नहीं हुआ, जिसके साथ अनसॉल्व्ड, जैसे घोस्ट था, किसका था ये, किंग हेमलेट का घोस्ट। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि वो एक जमाना था उसका, अब वो पास्ट में चला गया, उसके साथ वो चीज जो चुकी हैं वो चीजें, और उसको जस्टिस नहीं मिला है। एंड सुपर नेचुरल इंटरवेंशन, और सुपर नेचुरल की भी इसमें इंटरवेंशन है। ये रिप्रेजेंट करता कौन, द घोस्ट। घोस्ट किसका था, किंग हेमलेट का। तो यार्क स्कल जो ग्रेव यार्ड में जाके प्रिंस उसको होल्ड करता है, तो वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ डेथ, डीके एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इन डेथ। वो सबकी इक्वलिटी, डेथ के बाद सब इक्वल हैं, और डेथ, डीके और इक्वलिटी का सिंबल में दिखाता है यार्क स्कल। नाउ वी हैव द माउस ट्रैप प्ले। माउस ट्रैप प्ले जो था, जिसमें हमने ट्रैप करने की कोशिश की थी कि कौन सच्चा है कौन झूठा, एक्चुअल क्या चीज है। तो मेटा थिएटर एंड ड्रामेटिक आयरनी है माउस ट्रैप में। Next, we have dramatic devices. So, friends, the devices used in this tragic play, Hamlet की जो
डिवाइस प्ले में जो डिवाइसेस यूज हुई, ड्रामेटिक डिवाइस, दैट द आयरनी, एक ड्रामेटिक सिचुएशनल वर्बल आयरनी है इसमें। आफ्टर दैट प्ले विद इन प्ले है, जिसको मेटा थिएटर कहते हैं, प्ले विद इन अ प्ले। आफ्टर दैट फाइल करेक्टर्स हैं, जैसे लॉरेट और फारेंटेबस आर एज फाइल्स टू हेमलेट हैं। तो इस तरह से ड्रामेटिक डिवाइस ये चीजें यूज हुई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वी हैव साइकोलॉजिकल डेप्थ। हेमलेट इज ऑफन रिगार्ड एज शेक्सपियर्स मोस्ट साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स करेक्टर, बहुत ही साइकोलॉजिकल और कॉम्प्लेक्स करेक्टर है शेक्सपियर को, उसको माना जाता है। और हमने भी जाना कि को बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये प्ले है, जिसमें बहुत सारी चीजें प्लेज विद इन प्ले है, स्टोरी विद इन स्टोरी है, और करेक्टर्स बहुत सारी सिंबोलिज्म है, बहुत सारी चीजें इसमें थीम्स मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो सो हेमलेट इज ऑफन रिगार्ड एज शेक्सपियर्स मोस्ट साइकोलॉजिकल एंड कॉम्प्लेक्स करेक्टर। ही इज इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव है वो, एकदम सेक्शन नहीं करता बगैर जान सोचे समझे, इंट्रोस्पेक्ट करता, पहले अपने आप को झांक के देखता क्या मैं कहाँ ठीक हूँ कहाँ गलत हूँ, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड टॉर्मेंटेड बाई डाउट्स है, शक्कों से घिरा हुआ है। एंड क्वेश्चंस हिज ऑन मोटिव्स, अपने मोटिव्स का क्वेश्चन करता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेकिंग हिम डीपली डीपली रिलेटेबल टू मॉडर्न ऑडियंसेस, और आज के जो भी ऑडियंस हैं, जो पीपल हैं, उनको रिलेट करने वाला है, सबसे बेस्ट करेक्टर है हेमलेट, जो कि हर किसी को बताते हैं, करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे हमें सीख भी लेनी चाहिए हेमलेट के करेक्टर से, कि हमें हर चीज जो तैश में आके जल्दी बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो character Hamlet is very important representation of society ही। सो फ्रेंड्स, हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया, हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने डिटेल समरी की, उसकी स्टोरी पढ़ी। आफ्टर दैट हमने क्या किया, क्रिटिकल एनालिसिस भी किया हमने स्टोरी का, इस हेमलेट का प्ले का। आफ्टर दैट फ्रेंड्स वी हैव फाइनल पार्ट वेयर वी डिस्कस द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो इन दिस पार्ट वी हैव इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें हम अभी एमसीक्यूज की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, जो कि क्विक रिपीट के लिए आपका रिवाइज हो जाएगा जल्दी से, पूरा प्ले जो हमने हमने पढ़ा, या इसके अलावा भी इसमें जो चीजें बची होंगी वो दैट विल आल्सो अपीयर हियर। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ क्विक रिवीजन फॉर यू। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑन हेमलेट फॉर यूजीसी नेट टीआरएफ। तो आप इसमें क्या एक्चुअली है क्या ये क्विक रीजन के लिए है, तो इजी टू रिवाइज एंड लाइकली टू अपीयर इन एग्जाम्स। तो ऐसी चीजें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला हमारा जो शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट करेक्टर टू सी द घोस्ट इन हेमलेट। तो किसने देखा था सबसे पहले, बर्नार्डो ने देखा था घोस्ट को। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हेमलेट्स प्लॉट। तो ये हेमलेट का जो प्लॉट आया, इसका सोर्स क्या था, कहाँ से आया, किस से इंस्पायर हुए। तो हमने पढ़ा था, ये क्या था, ये एक प्ले का नाम था एमलेथ, जो कि सेक्सो ग्रामेटिक्स एमलेथ इसका नाम है। तो ये यहाँ से आया था, हमें इंस्पिरेशन हुई थी हेमलेट को प्लॉट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज पॉलिनस से बिफोर ही डाइज। पॉलिनस ने क्या कहा मरने से पहले। तो ही सेड ओह आई एम सलेन, ओह मेरा कत्ल किया गया, मुझे मारा गया। ये प्ले से लिया मैंने। आ, तो क्या कहा था पॉलिनस ने बिफोर ही डाइज, उसने कहा था ओह आई एम स्लेन। इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। क्वेश्चन 4 है, हु सेज देयर इज समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। किसने कहा था ये, मैर्सलिस ने। मैर्सलिस ने कहा था कि देयर इज नथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट जनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स हेमलेट। कौन सा जनरा है ये, ट्रेजेडी है सबसे पहले, ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लाइज। तो ट्रेजिक फ्लाई क्या है इसका, इनडिसीजन है, डिसीजन एकदम से नहीं लेता है। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन है। तो दीस आर द फ्लॉज इन द हेमलेट। सेवंथ क्वेश्चन इज, हु डिलीवर्स द फाइनल स्पीच इन हेमलेट। तो फाइनल स्पीच कौन डिलीवर करता है हेलमेट में, इन दैट इज फार्टिनबर्ग। फार्टिनबर्ग जो है वो फाइनल स्पीच को डिलीवर करता है। क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी अपीयर्स इन विच एक्ट। तो थर्ड एक्ट था, सीन वन था, क्लियर है। इसका आंसर है एक्ट थर्ड एंड सीन वन। क्वेश्चन 9 है, ओफिलिया डाइज बाई। तो ओफिलिया कैसे मर जाती है। तो ओफिलिया शॉक्ड बाई हर फादर्स डेथ को, और उसने ये चाहा, सोचा जब कि उसके
बिलोड ने लोअर ने, हैमलेट ने उसके फादर को मार दिया, तो वो भी अपने आप को ड्रोन करके मार जाती। हु सेज द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच, थिंग्स। तो ये किसने कहा था? ग्रेटिट्यूड ने कहा था द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच, जे लेडी को ज्यादा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि वो मैथिंग्स है। तो दैट इज, ग्रेटिट्यूड ने कहा था। ग्रेटिट्यूड कौन थी? हैमलेट की मदर, प्रिंस हैमलेट की मदर और किंग हैमलेट की बीवी थी, जिसको साथ बाद में शादी किसने की थी? कैलिडस। कैलिडस ने, आफ्टर किलिंग हैमलेट वन, किंग हैमलेट। So next question, question number 11 is, what is the name of the play Hamlet stages? What is the name of the play Hamlet stages? तो हैमलेट जिस प्ले को स्टेज करते हैं उस कहानी में, उस प्ले का नाम क्या था? द माउस ट्रैप। उसने माउस ट्रैप तैयार किया था ताकि कालिडास अपनी गिल्ट को फील करे और पता चल जाए उसको कि क्या रियली उसके फादर को कैलिडस ने मारा है या नहीं। तो दैट वाज द माउस ट्रैप। वो बहुत सारे जो फैक्ट्स को रिवील करना चाहता था उस प्ले की मदद से, एंड द प्ले का नाम क्या था? द माउस ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज हेमलेट से अबाउट यारिक्स स्कल? तो यारिक की स्कल के बारे में उसने क्या कहा? ऑल अलास, उसने कहा था अलास और यारिक, आई न्यू हिम, हर्ष्य। अलास और यारिक, आई न्यू हिम, हर्ष्य। मैं उसको जानता हूँ, हर्ष्य है, इसलिए यारिक की स्कल के साथ उसने ये कहा था। हु डज काइंडनेस सेंड टू स्पाई ऑन हेमलेट? देखो हेमलेट पे स्पाई करने के लिए किसको भेजा था? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, दो फ्रेंड्स थे किसके, बचपन के, हेमलेट के। दैट इज, उनका नाम था रोजनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टन। So these were two people who Caldus made them to spy on Hamlet. Question number 14 is, who returned to Denmark to avenge Polynus? तो पॉलिनस के साथ, पॉलिनस का बदला लेने के लिए, पॉलिनस कौन था? जिसको हेमलेट ने मारा था, प्रिंस हेमलेट ने मारा था, क्या समझ के? कैलिडस समझ के। अब लैरिड्स को मैनिपुलेट करता कौन? कैलिडस। उसके मन में चीजें भरता कि तुम्हें बदला लेना चाहिए किसके साथ? हेमलेट के साथ। सो पॉलिनस जो वो डेनमार्क में आता है, ही रन टू डेनमार्क टू एवेंज पॉलिनस। तो ये लॉरेट था जो अपने फादर का बदला लेने के लिए आया था, रिवेंज लेने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज, हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले? तो प्ले के एंड में किसको किंग बनाया जाता है? दैट इज फॉर्टिनब्रास। फॉर्टिनब्रास को किंग सक्सेसर बनाया, घोषित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वी हैव द फिफ्थ पार्ट। जैसे मैंने आपको एक प्रीव्यू दिया था पहले ही पेज पे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हमें इंट्रोडक्शन किया, हमने समरी और स्टोरी ऑफ द समरी डिटेल डिटेल किया, हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया, हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए फॉर क्विक रीजन के लिए। नो फ्रेंड्स, वी हैव द फाइनल, फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट, एमसीक्यूज विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, जो कि शेक्सपियर के हेमलेट जो ट्रेजिक प्ले है इसके बेस पे है। सो here are the a comprehensive list of important MCQs on William Shakespeare's Hamlet with detailed explanation, especially tailored for UGC NET JRF literature exams. So friends, have a yeah, have a look on it. हाँ, क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट इन हेमलेट? कौन सा था कैरेक्टर था जिसने घोस्ट को देखा था फर्स्ट टाइम हेमलेट की प्ले में? तो दैट वाज बेनराडो। बेनराडो, दिस इज सी पार्ट। तो एक्सप्लेनेशन करें, द प्ले ओपन्स विद बेनार्डो एंड फ्रांसिको गार्डिंग द रैम्पार्ट्स। ये दो वॉचमैन थे जिसका नाम क्या था? बेनार्डो एंड गार्डिंग द रैम्पार्ट्स एंड फ्रांसिको, ये क्या क्या गार्ड करते रैम्पार्ट्स को। तो बर्नार्डो फर्स्ट सीज द घोस्ट एंड देन अलर्ट्स अदर्स इंक्लूडिंग हरीश। बर्नार्ड पहले घोस्ट को देखता है, घोस्ट किसका था? किंग हेमलेट का। और बाद में उसको दूसरों को इन्फॉर्म करता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द castle where the action of Hamlet takes place? तो कौन सा कासल था वो? एलनिसोर था। ELSINOR, एलनसोर कासल था, कासल का नाम था। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बार्ट आंसर इज बी पार्ट, एलनसोर। एक्सप्लेन इट। एलनसोर castle is in Denmark. In Denmark is the central location of the play, representing a corrupt political world. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्लॉट ऑफ हेमलेट? अब सोर्स कौन सा था इसका? तो ये कहा था हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, इसका सोर्स था हेमलेट का। हमने एक और चीज पढ़ी थी, लिखा हेमलेट और एंड हेमलेट भी था, प्लस हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, ये सोर्स थे किसके? हेमलेट स्टोरी की, हेमलेट की। हाँ, हॉलिन्स क्रॉनिकल्स, सॉरी, हम इसके ऑप्शन पढ़ रहे हैं। हॉलिन्स क्रॉनिकल्स, तो प्लूटार्क्स व्यूज, गेस्टा डोनोरम बाई सेक्सो, हाँ सेक्सो, ये था सी पार्ट। गेस्टा डेनोरम बाई सेक्सोग्रामेटिक्स, तो यही इसका आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, शेक्सपियर टुक द बेसिक स्टोरी फ्रॉम द दानिश लीजेंड ऑफ द एमलेट, एमलेट से लिया गया था। फाउंड इन सेक्सो, जो कि जिसमें सेक्सोज वर्क, एंड अडॉप्टेड इन थ्रू बेलर्ड फर्स्ट वर्जन। क्वेश्चन नंबर 4, टू बी आर नॉट टू बी अपीयर्स इन विच एक्ट एंड सीन? आप किस एक्ट में था? थर्ड एक्ट में था, सीन वन था, तो इस कहाँ पे कौन सा सही है? सी है, एक्ट थ्री एंड सीन वन। सो दिस इज द आंसर, राइट आंसर सी पार्ट, एक्ट थ्री एंड सीन वन। Explanation, this Saliki reflects Hamlet's inner turmoil and philosophical contemplation on life and death. So next question is, who says there is something rotten in the state of Denmark? किसने कहा था there is something rotten in the, में हमने शॉर्ट आंसर में भी किया था, जो किसने कहा था? मैर्थलिस ने कहा था। मैर्थलिस इज डी पार्ट। तो मैर्थलिस ने कहा था कि there is something rotten in the state of Denmark। हाँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। मैथलिस सेज टू हर्ष, हर्षस कहता है आफ्टर द घोस्ट अपीयर्स, कहता है कि ए मेटाफर फॉर पॉलिटिकल एंड मॉरल करप्शन इन डेनमार्क, ये उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज पॉलिनस से बिफोर ही डाइज? पॉलिनस ने क्या कहा था जब वो मर जाता, मरने से पहले क्या कहा था? ओ आई एम स्लेन, बी पार्ट, सो बी पार्ट इज आंसर, ओ आई एम स्लेन। ये किसने कहा था? पोलिस ने मरने से पहले। अब इसको किसने मारा था? प्रिंस हैमिल्टन ने। जानबूझ के तो नहीं मारा था, उसने कैलिडस समझा था इसको, एंड मरते दम उसने कहा था, ओह, ओह आई एम स्लेन, ओह मुझे मारा गया, मुझे मेरा कत्ल किया। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, पॉलिनस शोर्स दिस एज ही इज स्टैब्ड बाय हेमलेट बिहाइंड द एरास, जब कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे उसको स्टैब किया, छुरा घोंपा उसके पेट में, किसने? हाँ, प्रिंस हेमलेट ने। लेकिन उसने समझा क्या था उसको? क्या समझा था? कैलिडास समझ के मारा था, तो जो कि गैट्रूड के रूम में बैठा छुपा था, कहाँ पे? पर्दे के पीछे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु रिटर्न्स टू डेनमार्क टू एवेंज हिज फादर्स डेथ? हमने पहले भी पढ़ा शॉर्ट आंसर्स में भी, तो क्या था? लैरेट्स था। सो लैरेट इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, लैरेट्स रिटर्न्स फ्रॉम फ्रांस आफ्टर हियरिंग ऑफ पॉलिनस डेथ, जब पॉलिनस की डेथ को उसके बारे में सोच सोच सुना। पॉलिनस कौन है? लैरेट का फादर है। पॉलिनस की डेथ के बारे में सुना, एंड लेटर कंस्पायर्स विद कैलिडिस किल हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले हेमलेट स्टेजेस टू कैच कैलिडस? तो कैलिडस को कैच करने के लिए, उसकी हकीकत सामने लाने के लिए, हेमलेट ने जो प्ले रचा था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप, ये हमने शॉर्ट आंसर में भी पढ़ा भाई, द माउस ट्रैप है। तो एक्सप्लेन करते हैं, दो द ऑफिशियल प्ले इज द मर्डर ऑफ गोंजालो गोंजागो, ऑफिशियली उस प्ले का नाम क्या था? मर्डर ऑफ गोंजागो था। तो हेमलेट उसको दोबारा रीनेम करता है द माउस ट्रैप टू रिवील गर्ल्स गिल्ट, कल्डस गिल्ट, कल्डस की गिल्ट को साबित करने के लिए उसको रीनेम करता है इस प्ले को, जिसका नाम उसने क्या रखा था पहले? द मर्डर ऑफ गोंजागो। उसको रीनेम करता है द माउस ट्रैप टू रिवील कल्डस गिल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु स्पीक्स द फाइनल लाइंस ऑफ हेमलेट? हेमलेट की फाइनल लाइंस कौन बताता है? वो कौन है? फंटी बियर से, फार्टिन ब्रास है, फार्टिन ब्रास। तो डी पार्ट इज राइट आंसर, फार्टिन ब्रास टेल द फाइनल लाइंस ऑफ हेमलेट। तो एक्सप्लेनेशन, आफ्टर ऑल मेजर कैरेक्टर्स डाई, जब पूरे मेजर कैरेक्टर मर जाते हैं, फार्टिन ब्रास एंटर्स एंड स्पीक्स द फाइनल लाइंस, वो एंटर हो जाता है और फाइनल लाइंस क्या था? ऑर्डरिंग ए मिलिट्री फ्यूनरल, जो ऑर्डर करता है साथ में कि एक मिलिट्री ऑनर के साथ हेमलेट का क्या फ्यूनरल किया जाए, मिलिट्री इज्जत के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ?
हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, इसको हमेशा भी कहते हैं। तो ट्रेजिक फ्लॉ क्या था उसका? इनडिसीजन। डिसीजन टाइम की नहीं लेता था, डिले करता था डिसीजन। एक ट्रेजिक फ्लॉ भी था, बट देखा जाए तो एक अच्छी बात भी थी, एक अच्छा करेक्टर इनडिसीजन था इसका। तो किसी चीज में जल्दी में एक्शन नहीं करता था, पहले उसको साबित करता था कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हु इज गिल्टी, हु इज नॉट। सो दे indecision is the right answer. That what C part, indecision is the right answer. Let us explain Hamlet's delay in avenging his father. वही बात आई कि वो डिले करता था avenging his father, कि उसने डिले किया मर्डर, फादर के मर्डर को अवेंज लेने में डिले किया। तो stems from our thinking and moral hesitation। और थिंक करता है और हेजिटेट भी करता है किस चीज से, कि ऐसा ना हो कि उससे कोई गलत डिसीजन हो जाए, गलत बदला निकले। तो आखिरत में मॉरलिटी की भी इसमें सोच आती है, मरने के बाद ऐसा ना हो मेरे साथ भी कुछ गार्ड के सामने गलत गलत साबित हूँ। इसलिए वो हर चीज की मैं क्या करता था, इंडिसीजन करता था, डिसीजन लेने में डिले करता था। पहले उस चीज को अच्छी तरह से छानबीन करता था, वो आफ्टर दैट ही टेक्स द एक्शन। तो सो मॉरल हेजिटेशन ये इसका जो है, हेमलेट्स डिले इन avenging his father's murder stem from overthinking and moral hesitation, making his a central this a central theme of the play. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ऑफेलिया डाई? ऑफेलिया कैसे मर जाती है? वो ड्राउन हो जाती, वो डूब जाती है, सुसाइड कर लेती है। सो ड्राउनिंग, सी पार्ट इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो गेटरीव डिस्क्राइब्स ऑफेलियाज डेथ एज accidental drowning, though it is often interpreted as suicide due to the madness। गेटरी तो उसको डिस्क्राइब करती है डेथ को कि एक्सीडेंटल ड्रोनिंग थी, बट दिस वाज नॉट एक्सीडेंटल ड्रोनिंग। एक्चुअली क्या था, उसके मन में वो मैड हो चुकी थी उसके चीज से, कि उसके एक तो फादर की डेथ हुई थी, दूसरी बात ये कि उसके लवर ने उसकी डेथ की, मौत उसको मारा। तो सो इस चीज से वो पागल हो चुकी थी, और इस तरह से उसने अपने आप को सुसाइड किया ड्रोनिंग करके। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रोजनक्रांट्स एंड गिल्डेंस्टर्न? तो हमने पढ़ा था कि ये बचपन के उसके दोस्त थे, किसके? हेमलेट के। तो देखते हैं, ऑफिलस ब्रदर्स, ऑफिलो के ब्रदर नहीं थे, हेमलेट स्कूल फ्रेंड्स थे। बी पार्ट इज राइट आंसर। हेमलेट के स्कूल फ्रेंड्स थे, कौन? रोजनक्रांट्स एंड गिल्डेंस्टर्न। सो बी इज द राइट आंसर, हेमलेट स्कूल फ्रेंड्स। एक्सप्लेन करते हैं, दे आर समन्ड बाई काइल्डस, उनको काइल्डस ने समन किया था टू स्पाई ऑन हेमलेट, बट आर अल्टीमेटली सेंट टू देयर डेथ्स। क्वेश्चन नंबर 13, which character says द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मीटिंग्स? हमने ये पढ़ा था अभी शॉर्ट आंसर्स में। ये किसने कहा था? गैट्रीड, जो कि यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर है, मेन फीमेल कैरेक्टर था, जो कि किंग हेमलेट की बीवी है। वो शादी कर लेती किसके साथ? कैलिडिस के साथ, उसकी मौत के, हेमलेट की मौत के बाद, और प्रिंस हेमलेट की मदर है। उसने कहा था कि द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मीटिंग्स। तो ये किसने कहा था? गैट्रीड ने। और गैट्रीड क्या है? बी पार्ट है में है। तो सो बी पार्ट इज राइट आंसर। तो गैट्रीड कमेंट्स ऑन द प्लेयर क्वींस एक्सेसिव वोज ऑफ लव, possibly reflecting on her own quick remarriage. क्वेश्चन नंबर 4, हु किल्स काइल्डस? काइल्डस को कौन मारता है? फाइनली हेमलेट ने ही उसको मारा था, although he was wounded by लैरेट्स। लैरेट ने हेमलेट पे अटैक किया, हेमलेट ने लैरेट पे अटैक किया पॉइजन वायर से, पॉइजन स्वॉर्ड से। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, कि उसके अपने मरने से पहले, बिफोर इज कम्स हेमलेट कम्स, ही किल्स हेमलेट। ये हेमलेट को भी किल करता है, वो अपना इस तरह से अपना बदला ले लेता है। तो हेमलेट किल्स कार्लस विद द पॉइजन स्वॉर्ड एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक द पॉइजन वाइन। वो पॉइजन वाइन को भी उसको फोर्स किया कि तुम अब ये पी। ये पॉइजन जो कि इसने तैयार की थी किसके लिए? हेमलेट के लिए, हेमलेट को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द घोस्ट अर्ज हेमलेट टू डू? तो घोस्ट ने क्या कहा था कि हेमलेट से, कि तुम्हें क्या करना चाहिए? एक्चुअली घोस्ट क्या था, किसका घोस्ट था? किंग हेमलेट का था। तो ये हेमलेट कौन है? उस किंग हेमलेट का बेटा है, ये प्रिंस हेमलेट है। और इससे ये क्या कहता है, वो घोस्ट, इसके फादर का घोस्ट कहता है कि तुम्हें रिवेंज लेना होगा, यू हैव टू टेक रिवेंज, बदला लेना होगा किस चीज का? हेमलेट की मौत का, क्योंकि साथ उसके साथ इंजस्टिस हुआ है। उसको मारा है किसने? कैलिडेस ने मारा था। सो व्हाट डज द होस्ट अर्ज हेमलेट टू डू? तो इसलिए आप देखते हैं, किल गैटरीड। गैटरीड को मारने की बात फिलहाल तो नहीं की थी। टेक टेक द थ्रॉन, हम ये आ सकता है इसमें, हम अभी देखेंगे सबसे फाइनल क्या है। अवेंज हिज डेथ एंड बट नॉट हार्म गैटरीड।
हाँ, इसने कहा था कि उसकी मौत का बदला लिया जाए, लेकिन ग्रेटिट्यूड जो उसकी बीवी थी उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रिंस हेमलेट की मदर जो है गेटट्रूड, और ये भूत जो जो एक टाइम किंग हेमलेट था, उसकी बीवी है गेटट्रूड। तो कहते हैं गेटट्रूड को कोई नुकसान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसकी मौत का बदला लिया जाए। किसके साथ? कैनेडियस है उसके जो साथी उसमें जो शामिल थे। So answer is C, avenge his death but not harm. Gertrude is the right answer. To explain this, it is the who says Gertrude should be left to heaven's judgment. Gertrude को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसको जजमेंट कौन करेगा? हेवन खुद, गॉड खुद उसका डिसाइड करेगा। एम्फेसाइजिंग हेमलेट्स मॉरल स्ट्रगल, और जिस जो एम्फेसाइज करता कि ये स्ट्रगल कौन सी है, हेमलेट की रिवेंज था, बट क्या था? मॉरल स्ट्रगल थी, उसने कभी सिन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज यार स्कल सिंबॉलिक? तो यारिक स्कल किस चीज को सिंबल, तो दैट वाज मॉरलिटी। जब यारिक स्कल उसने पकड़ा था, किसने होल्ड किया था? हेमलेट ने, ग्रेवयार्ड में। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? मॉरलिटी। तो एक्सप्लेन करते हैं। हेमलेट्स रिफ्लेक्शन ऑन द स्कल ऑफ यार्क, कोर्ट जस्टिस, रिप्रेजेंट्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। सो फ्रेंड्स, हमने इन डिटेल डिस्कस किया हेमलेट को, जो कि का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है, ट्रेजिक प्ले है, टू द पॉइंट ऑफ view of UGC NET exams, other state exams, or teaching jobs exams. So friends, काफी मेहनत लगती है एक्चुअली। फ्रॉम लास्ट 2 or 3 days आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप देख सकते हैं मेरी बोलने में भी आज, तो फिर भी मैंने कोशिश की। आई वांटेड यू पीपल टू एंगेज, आई वांटेड यू पीपल टू गेट समथिंग बेस्ट फॉर योर स्टडीज। सो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, काफी टाइम भी हो चुका है, और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही uh, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सो प्लीज लाइक एंड कमेंट देयर इन द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड subscribe to my YouTube channel. Ask other people to subscribe and watch my video content, so that you people could get best of the best, and I also get encouraged by you. So thank you फ्रेंड्स। हमने आज शुरुआत की है विलियम शेक्सपियर के प्ले की। तो वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेज एंड वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्योंकि हमने विलियम शेक्सपियर पर भी एंट्री की है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स होने वाले हैं, जितने भी टॉप क्लास एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ है, किसी स्टेट का सेट है, आपका यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोफेसर का है, कॉलेज प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम है, या किसी भी टीचिंग जॉब के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए शेयरिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।